किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ रूल नंबर 1, लॉ 1, लॉ 1 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जंक्शन रूल। इसको कहते हैं जंक्शन रूल। तो ये जंक्शन रूल जो है ना, वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है जंक्शन रूल। अब देखते हैं इस जंक्शन रूल में क्या समझना है। तो देखो, उसके लिए मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई जंक्शन बनाता हूं। यू कैन सी दिस, ये है ना जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन क्या होता है कि अगर बहुत सारे वायर्स कोई सर्किट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठा होते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो बहुत सारे वायर, मतलब दो वायर भी अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो जंक्शन रूल में क्या सीखना है? तो पहले तो आप जंक्शन क्या होता है वो सीख लो। चलो, मैं यहाँ पे इतना बड़ा जंक्शन नहीं बनाता हूँ, सिंपल सा जंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा जंक्शन अपने बनाते हैं। સર તમારો અવાજ નથી આવતો મને. બીજા બધાને આવે છે? હા સર, ક્લિયર છે. સર આવે છે. Yes, sir. યસ સર. Yes, sir. ઓકે, બકા જોઈ લે ને જરા, કંઈક મ્યુટ બ્યુટ થઈ ગયું હશે તારાથી. એકવાર વેરીફાઈ કરી લે, અથવા તો ફરીવાર બહાર નીકળી જા અને ફરીવાર અંદર આવી જા. સર મારા બી નથી આવતો ક્લિયર. હા, મારા સર તમારો અવાજ ક્લિયર નથી આવતો. પણ હવે તો એકવાર એક્ઝિટ થઈ જા અને ફરીવાર અંદર આવી જા. See, I'm just showing you the junction. Hey, this is junction. Okay, this is junction. Let us say if in this particular junction current I1 is moving towards junction, current I2 is also moving towards junction, and current I3 is moving away from junction. So in this particular case, I can say some charge Q1, let us say this is positive charge. This is traditional approach, although we believe that current is flowing because of electron, but relatively we speak a positive charge motion is in the direction of current, and positive charge is also moving. So Q1 charge is moving towards junction. Here it is Q3 charge moving away from junction, and Q2 charge is moving towards junction, right? Sir? So we have three charges. Out of that, two is approaching junction and one is leaving junction. Understood this perfectly, all of you? સર સર બોલો. તમે જે એક્સપ્લેન કર્યું ફરીથી કહેશો, મને અવાજ નહોતો આવતો. બકા આ એક જંક્શન છે, જો this is junction. Okay, junction is what? કે when two or more than two wire are intersecting at one particular position, okay, that is known as junction. So this particular point which you see here, that is basically junction. Okay, now in this particular case, I1 current is approaching junction, I2 current is also approaching junction, and I3 current is leaving the junction. Suppose this is suppose. Now if I1 current is approaching junction, I can say Q1 is the charge passing through that cross section of the wire, and that is also approaching the junction. Similarly, Q2 is also approaching the junction, and Q3 is basically leaving the junction, right? So what I can say, that from conservation of charge, okay, all I can say that charge moving towards junction is equal to what? Charge moving away from junction. Yes or no? जल्दी से बताओ, चलो. यस सर. યસ સર. Very Yes, common, sir. no? Yes, Very Yes, common. sir. Okay. Yes, sir. So
because of this I can simply say that Q1 plus Q2 is equal to Q3. Now if I divide this Q1, Q2 and Q3 by time, okay, if I divide this Q1, Q2 and Q3 by time, what I'll get? Charge upon time is I1 plus I2 plus equals to I3. yes, I1 plus I2 is equal to I3. So this is what we can say. Now from this, from this what I can say is, can I say that current approaching junction and current leaving the junction are same? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so this result indicates that current approaching junction is always equal to what? बोलो. Current leaving junction. Current leaving the junction. Okay, so this is what we have right now with us, right? And from this is equation number 1. Okay, now if I say this is equation number 1, so can I say from equation 1 I1 plus I2 plus minus I3 is equal to what? 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This is basically Yes, sir. this is basically known as sigma I is equal to 0. And what is sigma I? This is algebraic sum. This is algebraic sum of currents corresponding to junction. Okay, algebraic sum of currents corresponding to junction, इसको ये कहते हैं. Now in this particular case the law says, what is that? So for any circuit, algebraic sum of currents corresponding to junction is always 0. Is that clear? This Yes, is sir. the law. This is the statement of Yes, the law. sir. If you are talking about the statement, this is the statement, right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Understood Yes, sir. perfectly? Yes, sir. Yes, Okay. So for any current, for Yes, any sir. circuit, algebraic sum of current corresponding to junction is always 0, right? Chalo. So this is called first rule of Kirchhoff. This is also known as junction rule. And શું કહેવાય? Junction rule કહેવાય. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. When you look at the textbook, okay, they will just show the rule, okay. એ લોકોએ rule જ બતાવેલો છે, બીજું કંઈ નથી બતાવ્યું. Okay, but I have just described this particular rule. Suppose somebody asks you an examination for 2 marks, junction rule, then you don't have to write just a statement. You have to write this much thing. इतना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो चलो अब किरचॉफ लॉ नंबर 2, लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम करते हैं. मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, अभी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सब लोग करोगे, राइट? So this is just an illustration. चलो अब इस illustration का आंसर आप सबको देना है मुझे. चलो अभी इस पर्टिकुलर केस में देखो, यहां पे 2 एम्पियर है,
यहाँ पे 2 एम्पियर है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, यहाँ पे 1 एम्पियर है, यहाँ पे 3 एम्पियर है। तो आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे करंट की वैल्यू क्या मिलेगी और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? ठीक है, यहां पे और यहां पे करंट की वैल्यू क्या मिलेगी वो मुझे आपको बतानी है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट at the place of question mark। चलो जल्दी से बताओ। સર हम्म સર આ અહીંયા 3A લખ્યું છે કે 2A લખ્યું છે રાઈટ સાઈડ ઉપર? 3A, this is 3 एम्पियर। ઓકે, તો સર વચ્ચેવાળી જે વાયર છે ને એમાં 3A અને જે આ લાસ્ટ વાયર છે ને એમાં 0 એમ્પિયર। અહીંયા વચ્ચે વાત 3A આવશે એમ? હા કેમ? સર 1 એમ્પિયર આવશે. Yes, that's right, 1 एम्पियर આવશે। અરે સોરી એરો મેં જોયા નહીં એરો एरो જોવા પડે ને ભાઈ। જો this is 2 एम्पियर, right? This is 1 एम्पियर। Can I say this is junction? कि नहीं? This is junction। Yes, sir. So now in this particular case, 2 ampere is here, 2 ampere is approaching the junction, 1 ampere is leaving the junction. The rule is simple, current leaving the junction is equal to current approaching the junction. So if it is 2 ampere here, right, and 1 ampere here, then 1 ampere must be in this particular direction. If I take 1 ampere here, current leaving the junction is 1 ampere, current leaving the junction is 1 ampere, so 1 plus 1 is 2, which is equal to nothing but the current approaching the junction, right? Now this 1 ampere is here, 3 ampere is here, so 1 ampere is approaching the junction, so यहाँ पे क्या आएगा? 4 एम्पियर। 4 ampere आएगा। Is that understood everyone? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया छोटा सा इलस्ट्रेशन। किस पर्टिकुलर टॉपिक के बेस्ड हुआ ये? तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, लॉ नंबर 1, जिसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन रूल कहते हैं। और ये जंक्शन रूल जो है ना, दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है बोलो? Energy. करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है। और किरचॉफ को अपने टीचर ने क्या किया था? चार्ज कंजर्वेशन के बारे में तो डिस्कस किया ही था, आप जानते हो, राइट? तो चार्ज कंजर्वेशन अगर आता था उसको, तो उसने थोड़ा सा अपना दिमाग ज्यादा लगाया और चार्ज कंजर्वेशन के लॉ को थोड़ा अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की उसने कोशिश की, और यू सी कि उसको ऐसा रिजल्ट मिल गया। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लॉ नंबर 2 आएगा अभी, किरचॉफ लॉ नंबर 2। तो व्हाट इज किरचॉफ लॉ नंबर 2? एंड दिस इज extremely applicable and I can say important relation। किरचॉफ लॉ नंबर 2, इसको कहते हैं लूप रूल, इसको कहते हैं लूप रूल, ओके। और ये लूप रूल जो होता है, दैट इज बेसिकली क्या होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? एनर्जी होता है, राइट? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो रूल है उसको अब डिस्कस करते हैं, चलिए। तो ये लूप रूल हो चुका है एंड दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनना, आई वांट एवरीवन्स 100% अटेंशन, बिकॉज ये नहीं आएगा ना तो एक भी सर्किट आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। देखो, इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सर्किट बनाता हूं। ये जो सर्किट मैं बनाने वाला हूं ना,
ये सर्किट एकदम रैंडम सर्किट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक प्लान करके मैं बना रहा हूं, क्योंकि ये लूप रूल है ना, वो कोई भी टाइप की सर्किट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरा सर्किट क्या है एग्जैक्टली। यहां पे एक बैटरी लगाता हूं, यहां पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेता, रेजिस्टेंस है। फिर यहां पे फिर से एक बैटरी लगा दिया मैंने, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है। ओके, एक काम करते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं, चलो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर देखो, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस है, फिर यहां पे एक तीसरा रेजिस्टेंस है, the fourth resistance is here, fifth resistance is here, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस मेरे पास यहां पे कुछ बैटरीज लगी हुई है, जैसे ये एक बैटरी है, पॉजिटिव यहां पे, नेगेटिव यहां पे, फिर एक बैटरी यहां पे है, माइनस यहां पे, प्लस यहां पे, और एक बैटरी यहां पे है, माइनस यहां पे, प्लस यहां पे, ठीक है। ये हर जगह पे बैटरी लगा दिया मैंने। अब ये यू कैन से ये कोई बहुत बड़ी सर्किट हो सकती है, और बहुत बड़ी सर्किट का ये एक छोटा सा पार्ट है, समझ लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे ए लिखता हूं, यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे डी, और यहां पे ई। इस रेजिस्टेंस को बोलता हूं R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5। फिर बैटरी जो है, यहां पे ये जो बैटरी है उसको E1 बोलता हूं, यहां पे जो बैटरी है इसको E2, और यहां पे जो बैटरी है उसका EMF है E3। यहां तक समझ में आया ये सर्किट मैंने बनाई वो? यस सर। मैंने यहाँ पे एक सर्किट ली है, समझ लो, मैंने एक सर्किट ली है, और ये सर्किट कोई बड़ी सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है, ये कोई स्पेसिफिक सर्किट नहीं है, ये पूरी सर्किट नहीं है। इसीलिए ये मैंने क्या किया है, ये सब ये लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन। ये क्यों ड्रॉ किया है? हो सकता है वहां से भी कोई करंट आ रहा हो। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लेने वाला हूं। सपोज ये जो है ना, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाला करंट I1 है, वो इस डायरेक्शन में है। फिर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है I2, वो इस डायरेक्शन में है। फिर करंट I3 इस डायरेक्शन में है। फिर करंट I4 जो है वो इस डायरेक्शन में है, और करंट I5 जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। आप सोचोगे सर ये करंट कैसे इस तरफ हो सकता है, यहां ऐसे जा रहा है तो फिर R2 में तो फिर ऐसे ही जाना चाहिए ना, मतलब B से C की तरफ, लेकिन आपने तो सर C से B की तरफ ड्रॉ कर दिया। मैंने अभी बोला हो सकता है ना कि यहां से कोई बड़ा सा करंट आ रहा हो इस पर्टिकुलर जगह से, और इस तरफ से कोई छोटा करंट आ रहा हो। देखो यहाँ पे जंक्शन रूल फॉलो करने वाली बात है, तो हम यहाँ पे प्योरली एंड रैंडमली एक सर्किट में चूज कर रहा हूं, समझ लो। ये सर्किट कोई बड़ी सर्किट का पार्ट है, और उसमें हर एक रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कौन कौन सी डायरेक्शन में है वो मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आपको मान लो ऐसी सर्किट दे दी है आपको, और आपको बोला है कि किरचॉफ लूप रूल इसके ऊपर अप्लाई करो, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। ये सर्किट ऐसा कैसे है उसके बारे में मत सोचो, समझ लो। ये सर्किट ऐसा कैसे है उसके बारे में मत सोचो, आप ये सोचो कि सर्किट अगर ऐसा है तो अब ये लूप रूल को, किरचॉफ सेकंड लॉ को हम कैसे अप्लाई करें। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई दिस लूप रूल ऑन दिस पर्टिकुलर सर्किट।
सर्किट कैसी होगी वो तो अपने फ्यूचर में देखेंगे, सर्किट हम खुद जब बनाएंगे ना तब ऐसे सिचुएशन में हम सोच लेंगे, लेकिन आवर प्राइम कंसर्न एट दिस पर्टिकुलर प्लेस इज टू लर्न हाउ टू अप्लाई लूप रूल। ठीक है, तो लूप रूल अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। तो लूप रूल के लिए एक बात सब सिंपल सी है जो सबको समझनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात क्या है, दैट इन अ सर्किट पोटेंशियल at any point on the circuit is always static। स्टैटिक मतलब बदलता नहीं है। ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा ना, मान लो अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे 2 वोल्ट है, तो उसके 2 घंटे के बाद भी क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 वोल्ट ही होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो बी का पोटेंशियल -2 वोल्ट है, तो आप 50 घंटे के बाद भी इसका देखोगे पोटेंशियल तो -2 वोल्ट ही रहेगा। मतलब ये पोटेंशियल जो होता है वो स्टैटिक होता है, कभी चेंज नहीं होता है। ओके, ऑलवेज स्टैटिक ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन। अगर ये पोटेंशियल बदल जाए ना तो एनर्जी कंजर्वेशन में गड़बड़ी हो जाए। तो एनर्जी कंजर्वेशन वाला इश्यू है, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सर्किट के कोई भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना वो हमेशा क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। बस इस पर्टिकुलर चीज को कंसेप्ट लेके इसका फायदा उठाते हुए हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे है ना एक पर्टिकुलर मेथड से इस लूप के अंदर घूमने वाला हूं। या तो मैं क्लॉकवाइज घूम सकता हूं या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता हूं। ऐसा रूल नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वो आपकी मर्जी है कि आपको क्लॉकवाइज घूमना है तो क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, लेकिन कोई भी एक मेथड पकड़ लीजिए। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं क्लॉकवाइज घूमने वाला हूं, तो घूमना शुरू कहां से करेंगे, तो घूमना शुरू कहीं से भी कर सकते हो आप। ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही स्टार्ट कर सकते हो। नो, देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज फिक्स्ड। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ ए से लेके बी जाऊंगा, बी से सी से डी, डी से ई से ए, ऐसे लूप में गोल घूमने वाला हूं मैं। ठीक है, तो इस घूमते घूमते क्या होगा देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। घूमने से पहले कुछ रूल बता देता हूं। देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि ये ए का जो पोटेंशियल होगा ना वो ज्यादा होगा और बी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। यस है ना, तो ए से बी तक जाओगे उसमें ए का पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा होगा और बी का पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा। ओके, तो अपने क्या करेंगे, एक रूल बना देते हैं कि आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा, बोलो। रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा। ओके, यस, तो अपना रूल क्या है यहाँ पे, रूल वही है कि पोटेंशियल reduces in the direction of current. Okay, and therefore we will move from plus to minus, right? प्लस से माइनस की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो and therefore potential drop will be negative। पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब अगर ए से बी जाऊंगा ना मैं तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। ये कैसे होगा ना वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद समझाने वाला हूं, अभी टेंशन मत करना इसका। अभी एग्जैक्टली उससे उल्टा बात करें कि हम अगर देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बी से सी की तरफ जा रहे हैं और करंट हमारा क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेसिकली वी आर मूविंग ऑपोजिट टू करंट। यस और नो? यस यस सर। यस सर। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे आप बताओ कि हम क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएंगे या लोअर से हायर में जाएंगे? लोअर से हायर। लोअर से हायर में, राइट? लोअर से हायर। यस, वेरी गुड। बी का पोटेंशियल लेस होगा, सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। सो
potential increases, okay, in the direction opposite to current, right? And therefore we will move from what? Negative to positive, and therefore potential drop will be positive. अब ये क्या होता है मैं डिस्कस करने वाला हूं, सो दिमाग ज्यादा मत लगाना अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। अच्छा चलो बैटरी की बात करते हैं। बैटरी में अगर मैं बी से सी जाता हूं तो बैटरी में मैं बेसिकली कहां पे जा रहा हूं? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, ठीक है। बैटरी में मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं। देखो बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब है पोटेंशियल का इंक्रीज होना। सही बात के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So Yes. Yes, sir. when we move from positive to negative in battery, okay, when we move from positive to negative in battery, okay, potential will increase and vice versa. देखो ये ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा है ना यहां से लेके यहां तक, ये कभी भी आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, याद रखना, ओके। ये सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहां पे लिखा हुआ है, सो दैट व्हेन एवर यू रीड दिस यू विल कम टू नो कि हमको क्या करना है। एग्जाम में ये कभी भी मत लिखना, ओके। चलो अब क्या करने वाला है, लेट्स स्टार्ट। अब मैं क्या करूंगा, ए से बी की तरफ मूव करूंगा, फिर बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा एंड सो ऑन, ओके। तो एक काम करता हूं, इस सर्किट को मैं नीचे भी ले लेता हूं, सो दैट इट इज गोइंग टू बी हैंडी फॉर अस, ओके। तो चलो इसको अपने ले लेते हैं नीचे की तरफ, यहां पे भी आ गया यहां पे। लेट्स सी नाउ, चलो इस सर्किट के अंदर से हमको एनालिसिस करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम सर्किट, सिर्फ इतना लिखूंगा, फ्रॉम सर्किट व्हेन वी मूव, ओके, विद इन लूप। लूप का नाम देना पड़ेगा। कैसा नाम देंगे हम? कहां से कहां पे मूव कर रहे हैं? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ए। तो फ्रॉम सर्किट व्हेन वी मूव विद इन द लूप ए बी सी डी ई ए, क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, ए से शुरू करना है, तो क्या लिखेंगे? वी ए। वी ए इज द पोटेंशियल एट ए। एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे, एवरीवन। थोड़े थोड़े भी अगर नींद आ रही है, सो रहे हो तो जाग जाओ, ठीक है। वी ए से शुरू करेंगे, दिस इज वी ए, ओके। अब क्या करेंगे? ए से बी जाएंगे, तो देखो ए से बी जाएंगे तो वी आर मूविंग विथ करंट, राइट? वी आर मूविंग विथ करंट। तो करंट के साथ जाने में पोटेंशियल क्या होता है? रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है? जल्दी बताओ। Reduce. रिड्यूस होता है तो माइनस, रिड्यूस होता है तो माइनस, इंक्रीज होता है तो प्लस करेंगे। तो यहां पे रिड्यूस, कितना पोटेंशियल रिड्यूस हुआ? तो देखो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? हमेशा I इंटू आर होता है। तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा I1 R1। ये समझ में आया? माइनस Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। तो अब क्या हुआ, अब ए से बी तक चले गए, चलो बी से कहां जाएंगे? अब सी तक जाना है। तो अब क्या कर रहे हैं? देखो वी आर मूविंग विथ करंट या ऑपोजिट टू करंट? Opposite. ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होगा? Opposite. पोटेंशियल Increase. होगा या इंक्रीज होगा? Increase. Increase. हायर पोटेंशियल इस तरफ होता है, लोअर पोटेंशियल इस तरफ होता है। तो वी आर बेसिकली मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो ये पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और पोटेंशियल अगर इंक्रीज होता है तो क्या करना चाहिए? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? Plus. प्लस करेंगे। वेरी गुड, प्लस करेंगे।
कितना प्लस करेंगे तो क्या I2R2, I2R2 करेंगे तो I2R2 जितना पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। अब चलो, अब यहाँ पे बैटरी आ रही है, देखो बैटरी आ रही है तो क्या होगा, बैटरी में क्या कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना। बैटरी में हम कहां जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं। तो माइनस से प्लस में जाओगे तो क्या करोगे, प्लस। क्यों, Potential drop is positive. बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो रूल सिंपल इतना ही है कि अगर हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हो तो प्लस, और लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हो तो माइनस। बस इतना याद रखो। तो हम क्या करेंगे, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जाना मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ जाना, हायर पोटेंशियल की तरफ जाना मतलब प्लस। प्लस कितना करेंगे तो क्या E1। बैटरी आएगी तो बैटरी का वोल्टेज डायरेक्टली लिखो। रेजिस्टेंस आता है तो क्या करो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा तो कि करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट मिलेगा। फिर क्या करेंगे, देखो C से D तक जाना है। अब C से D तक जाएंगे तो बोलो अब मैं क्या लिखूं, आप ही बताओ मुझे। Plus I3R3. यस, इट इज प्लस I3R3, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं। तो सिंपल, कुछ भी याद ना रहे ना तो इतना याद रखो, करंट की डायरेक्शन में माइनस और करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस। इतना तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस ये सबसे इजी रास्ता है। मैं यहाँ पे वो रूल लिख देता हूं। विथ करंट अगर आप जाते हो तो क्या लिखना है आपको, माइनस। और अगर आप ऑपोजिट टू करंट जाते हो तो क्या लिखना होगा, प्लस। बस इतना रूल दिमाग में रख लो। तो C से D जा रहे हैं, ऑपोजिट टू करंट जा रहे हैं तो प्लस। प्लस कितना तो के वोल्टेज, वोल्टेज कितना होता है तो के I3 इंटू R3। खत्म हो गया। चलो अब क्या करेंगे, D से E की तरफ जाएंगे। तो देखो D से E की तरफ जाना मतलब करंट के साथ जाना। विथ करंट आई एम मूविंग, विथ करंट तो क्या करेंगे भाई, माइनस Minus I4R4. Minus I4. माइनस I4R4। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे, बैटरी में देखो प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जाना मतलब Minus C2. माइनस E2 Minus E2. Minus C2. ओके। फिर क्या करेंगे, ई से ए की तरफ जाते हैं। चलो तो क्या करेंगे, बैटरी में देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं, Minus E3. प्लस से माइनस जा रहे हैं। Minus E3 plus I5R5. यस, प्लस I5R5। ओके, समझे कि नहीं समझे इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, कहाँ पे आ sir. गए, वापस आ यस गए। सर हम वापस कहाँ पे आए, ए पे आ गए। अगर वापस ए पे आ गए ना तो क्या लिखना है, इक्वल टू VA लिखना है। जहां पे रुकना है ना, जहां पे भी हम रुकते हैं उसका पोटेंशियल इक्वल टू करके लिख देंगे। मान लो अगर मैं पूरे लूप में नहीं घूमता, कोई मुझे बोलेगा नहीं सर आपको पूरे लूप में नहीं घूमना है, आपको सिर्फ ए से बी तक जाना है, तो मैं क्या करता पता है, ऐसा करता, देखो VA माइनस I1R1, बी पे रुक जाना है तो इज इक्वल टू VB। समझे? जहां पे रुकना होता है ना, इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल लिखना होता है किरचॉफ लॉ में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अपने इस पूरे लूप में हम कहां पे रुके, कौन से पॉइंट पे रुके, A. ए पे रुके ना, ए पे रुके, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, VA लिखेंगे। ठीक है, Yes, sir. पक्का समझ में आया ये? Yes, Yes. sir. चलो, तो इतना समझ में आ गया है। तो अभी इसको थोड़ा बहुत देखो एनालाइज करते हैं। ये VA कैंसिल हो जाएगा। देखो ये VA इस तरफ और VA इस तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा देखते हैं, माइनस I1R1 बचा, फिर I2R2, फिर I3R3, फिर माइनस I4R4, फिर I5R5। ठीक है, और साथ साथ में क्या बचा यहाँ पे, E1 माइनस E2 माइनस E3 इज इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं? Yes, sir. पक्का?
ये समझ में आया? यस सर। Yes. Yes, sir. क्या करते हैं? Yes, sir. Yes, good. sir. वेरी गुड, सुपर सुपर। तो अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E3 इज इक्वल टू, अब ये सारे IR वाले जो टर्म है ना, उसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ये I1 R1 हो जाएगा, फिर ये माइनस I2 R2 हो जाएगा, फिर ये माइनस I3 R3 हो जाएगा, फिर ये प्लस I4 R4 हो जाएगा, प्लस माइनस I5 R5 हो जाएगा। सही है ये? चलो अब Yes, क्या sir. करते हैं? Yes, Yes, sir. Yes, चलो sir. अब ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है। इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या बोलेंगे पता है? तो इसको बोलेंगे नेट EMF ऑफ लूप। लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे कि नेट EMF ऑफ द लूप। इस लूप का नेट EMF क्या होगा, तो कितना होगा। और राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एल्जेब्रिक सम of products of currents and their corresponding resistors। समझे? एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द करंट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टर्स, इसको बोलते हैं Yes, sir. right hand side। तो अब इस दो स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से लिख लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, किरचॉफ्स सेकंड रूल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट इसका लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, तो के इन अ लूप ऑफ अ सर्किट, ओके, algebraic sum of products of current and their corresponding resistances। corresponding resistances is always equal to net EMF of the loop। okay, this is Kirchhoff's second law, okay, which is also known as loop rule। एकदम क्लियर सबको भाई? यस सर। पक्का Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. कि ऐसा कोई भी लूप Yes, आपको sir. Yes, घूमना आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. घूम सकते। Yes, Yes, sir. sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर चलो एक प्रॉब्लम करते हैं और उस प्रॉब्लम में घूमते हैं, ठीक है? एक प्रॉब्लम करते हैं और प्रॉब्लम में घूमते हैं अपने। चलो अपने एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन है ये। illustration, okay, find the potential difference between B and D in the circuit shown below। ओके, मुझे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी और डी के बीच में। अब देखो ए यहां पे है, बी यहां पे है,
C यहाँ पे है और D यहाँ पे है। ओके, अब क्या है ध्यान से देखना, पूरी सर्किट में बना रहा हूं अभी। इस पूरी सर्किट के अंदर यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 ओम। ओके, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ओके, और हर एक जगह पे बैटरी कनेक्टेड है। एक बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, प्लस और माइनस। यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्टेड है, माइनस और प्लस। एक बैटरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और एक बैटरी यहाँ पे भी है, प्लस और माइनस। ओके, और ये बैटरी 3 वोल्ट की है, ये बैटरी 1 वोल्ट की है, ये बैटरी 2 वोल्ट की है, ये बैटरी भी 1 वोल्ट की है, और ये सारे रेजिस्टेंस जो है उसमें ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। बस इतना सर्किट दिया है, और इस सर्किट के ऊपर से आपको क्या करना है, आपको B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई आइडिया देगा? સર બોલો સર બોલો, બોલો. VDC કા તો VDA માંથી કોઈ પણ એક લૂપમાં ફરવાનું. BDC, BDA, जो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, फाइंड VBD। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो अभी क्या करना है, इसमें आप है ना ध्यान से देखो, पहले तो सबको क्या करना पड़ेगा, करंट सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो करंट नहीं दिया है, मैंने पहली सर्किट में करंट आपको दे दिया था, समझ में आया? मैंने पहली सर्किट में आपको करंट दे दिया था, वाइल यहाँ पे करंट दिया नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो काम करना पड़ेगा कि इस सर्किट के अंदर करंट का सेटअप करना पड़ेगा। तो करंट का सेटअप कैसे करोगे? तो याद रखो, करंट का सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरी सर्किट के अंदर सबसे बड़ी जो बैटरी होती है ना उसको ढूंढेंगे। सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है भाई? 3 3 वोल्ट. 3 वोल्ट की बैटरी है। तो 3 ये वोल्ट. बैटरी हमारा क्या हो गया, इस पूरी सारी सर्किट की जितनी भी बैटरीज है ना, ये सारी बैटरी का लीडर कौन है? तो ये 3 वोल्ट की बैटरी है। तो हम मानेंगे कि सिर्फ ये 3 वोल्ट की बैटरी ही इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर है, और उस 3 वोल्ट की बैटरी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर करंट को सेटअप करेंगे। तो देखो मैं यहां से करंट शुरू करता हूं। करंट पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी से बाहर निकलेगा। कितना करंट निकलेगा भाई? I। ध्यान से सुनना, I करंट निकला, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में कौन सा करंट होगा? I जितना करंट होगा। अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगा? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से करंट के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा और एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा। सही है कि नहीं? यस सर. Yes, sir. Yes, ये Yes, करंट होगा, मान लो ये करंट है I1, तो ये करंट कितना होगा? I minus I1. यस, I माइनस I1 होगा, क्योंकि यहां पे अपने क्या किया, जंक्शन रूल लगाया। देखो यहां पे अंदर जाने वाला करंट क्या है? I है, तो बाहर जाने वाले करंट का सम क्या होना चाहिए? अंदर जाने वाले करंट के बराबर होना चाहिए। तो देखो I माइनस I1 बाहर जा रहा है और I1 भी बाहर जा रहा है, तो अगर इन दोनों का अगर मैं सम कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? I मिल जाएगा। तो सिंपल कॉमन सेंस लगानी है कि करंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मान लो टोटल करंट 5 एम्पियर आता है, इस तरफ 2 एम्पियर चला गया, तो इस तरफ कौन सा जाएगा? 3 एम्पियर चला जाएगा। दैट इज वेरी नेचुरल। अगर I आ रहा है, I1 इस तरफ गया, तो इस तरफ कौन सा करंट जाएगा? तो कि I माइनस I1 जाएगा। तो अब I माइनस I1 से यहां तक इस तरफ क्या होगा देखते हैं। चलो ये I माइनस क्या हो गया? I1। ठीक है,
तो ये हो गया पूरा सेटअप। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो I1 और I माइनस I1 मिल जाएंगे और फिर से क्या बना देंगे, I बना देंगे, और ये करंट I देखो इस पर्टिकुलर ब्रांच में जा रहा है। सो इज दैट वेरी मच क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया यहाँ पे एकदम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पता नहीं चला है तो अभी पूछ लो, बाद में मुझे फोन करके मत बताना कि सर ये सीखा, थोड़ा समझ फिर से समझना पड़ेगा। अभी मैं समझाऊंगा जितनी बार समझना है, डोंट वरी अबाउट दिस। ऐसे एक प्रॉब्लम नहीं करने वाला, ऐसे तो अपने 3-4 प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? शुड नॉट वरी अबाउट दैट, ओके? तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बोलो। આમાં 3 વોલ્ટની 2 બેટરી આલી હોય તો हाँ तो कोई वांधो नहीं, कोई पण एक बैटरी थी करवानो, કોઈ પણ એક જ લેવાની. कोई पण एक बैटरी લઈને ચાલવાનું। सी આમ જોવા જાઓ ને અહીંયા, so if you start with 1 MP 1 volt battery, suppose if you start with 1 volt battery, right, तो પણ कोई प्रॉब्लम नहीं થાય, समझी ले। if you start with 1 volt battery then also it is not going to be a problem, so इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, don't worry about this, ओके? लेकिन हम ट्रेडिशनली जाते हैं, तो ट्रेडिशनली क्या होता है, ट्रेडिशनली क्या होता है, बड़ी बैटरी से शुरू करते हैं हमेशा हम, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़े। तो अभी इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जरा ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर अब क्या करेंगे, लूप में घूमने वाली बात है, तो क्या करते हैं, पहले एक लूप सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस सर्किट, फ्रॉम सर्किट अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है? किरचॉफ सेकंड लॉ, कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है? इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। तो कुछ लोग के सेकंड लॉ का SL लिखेंगे, कुछ लोग वोल्टेज लॉ का VL लिखेंगे। अगर दोनों में से कुछ भी लिखा है वो एक ही बात है, मतलब दे आर सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग, राइट? तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होगा देखते हैं। चलो कहां पे, अपने कौन से लूप में, टू लूप, कौन सा लूप लेते हैं? तो देखो मैं ले रहा हूं A से B जाऊंगा, B से D जाऊंगा, D से A जाऊंगा, और मैं इसमें क्या करने वाला हूं, ऐसे क्लॉकवाइज घूमने वाला हूं। तो चलो क्या लिखना चाहिए मुझे, VA लिखना चाहिए, फिर क्या लिखूं, बोलो 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 सर प्लस आई पहले बैटरी है भाई, ओके हाँ सॉरी, तो E1 देखो A से B की तरफ जाना है, बैटरी आई, बैटरी में क्या हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस, पोटेंशियल रिड्यूस हुआ, पोटेंशियल रिड्यूस हुआ तो माइनस, कितना माइनस, तो के 3 वोल्ट, ठीक है? फिर हम कहां गए, 3 ओम के आसपास गए। 3 ओम में करंट अपने साथ जा रहा है कि ऑपोजिट जा रहा है? ऑपोजिट जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे या माइनस? प्लस Plus. प्लस। क्या करना पड़ेगा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो रेजिस्टेंस 3 ओम है, करंट कितना है, I है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या आएगा, 3I। समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. यस सर चलो Yes, sir. Yes, sir. अब कहां से जाएंगे, B से D, B से D जाएंगे तो करंट के साथ या करंट के ऑपोजिट? Opposite. ऑपोजिट होगा, तो क्या लिखना चाहिए, Opposite. Plus. Plus. Plus 2I1. 2I1। चलो फिर D से A जाना है, फिर से करंट के साथ या करंट के ऑपोजिट? ऑपोजिट Opposite. ऑपोजिट है तो प्लस, Plus I. 1 into I, ठीक है? प्लस 1 आई into I करेंगे। फिर बैटरी आ गई, देखो बैटरी में क्या करना पड़ेगा, -1. -1 इज इक्वल टू VA, राइट? Yes, sir. क्योंकि Yes, A पे sir. रुक जाना था, A पे हम रुक जाने वाले थे, तो क्या आएगा, VA आएगा। तो VA कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन बचा, देखो 3I प्लस I यानी 4I, फिर क्या है, 2I1 है यहाँ पे, फिर देखो -3 और -1 ये कैंसिल हो चुका है, -3 और -1 -4 हो जाएगा, और उसको अपने राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना? तो यहां से क्या मिलेगा, 2I प्लस I1
इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया एकदम परफेक्टली कि कोई क्वेरी है? नो सर। नो सर। होगा ना? नो सर। बहुत अच्छा, यस सर। बहुत अच्छा। इसमें अगर कोई क्वेरी नहीं है तो दैट्स रियली गुड। अब देखो क्या करेंगे, ये तो एक इक्वेशन मिला हमको। अब देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ कुछ लिखता हूं। मुझे क्या फाइंड करना है? वोल्टेज बिटवीन बी एंड डी फाइंड करना है, ठीक है। तो वोल्टेज बिटवीन बी एंड डी का मतलब क्या होगा, तो कि वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर। तो I कितना है, I1 है, 2I1 R कितना है, 2 है। तो मतलब वोल्टेज बिटवीन बी एंड डी क्या होगा, 2I1 होगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसको अपने इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से पता चलता है कि मुझे मेरा आंसर ढूंढने के लिए I1 की वैल्यू चाहिए। अगर I1 की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मुझे मेरा आंसर मिल जाए। सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. I1 की Yes, देखो, sir. ये इक्वेशन से I1 की वैल्यू मिलेगी मुझे? क्या लगता है आपको? आपको क्या No, लगता है, sir. इस इक्वेशन से मुझे I1 की वैल्यू मिलेगी? sir. नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल आई भी अननोन है, मुझे पता नहीं है। Yes, sir. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक और दूसरा इक्वेशन चाहिए जिसमें I और I1 आता हो। यस सर। मैथमेटिकली सोचो, इस सुनना, शांति से सब लोग सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। एल्जिब्रा का एक बेसिक रूल है कि अगर कोई एल्जिब्रिक इक्वेशन हो और उस इक्वेशन के अंदर 2 अननोन हो, I और I1 अपने 2 अननोन है, यहाँ पे 2 अननोन अगर ढूंढने हैं तो कम से कम 2 एल्जिब्रिक इक्वेशन आपको चाहिए। 3 अननोन ढूंढने हो तो 3 इक्वेशन चाहिए, 4 अननोन ढूंढने हो तो 4 इक्वेशन चाहिए। सिंपल सा रूल इतना ही है कि जितने अननोन है उतने इक्वेशन आपको चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 2 अननोन है, I और I1। तो मुझे I और I1 अगर ढूंढना है तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें I और I1 आता हो। तो एक और इक्वेशन कहां से लाएंगे? तो कोई बात नहीं, दूसरी लूप भी है ना, बहुत सारे लूप मिलेंगे आपको इस पूरी सर्किट के अंदर। तो मैं क्या कर ले वाला हूं, दूसरा लूप लेता हूं। चलो, फ्रॉम सर्किट, BCDB। यस, BCD भी ले लेंगे। फ्रॉम सर्किट, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप BCDB। BCDB, ठीक है। चलो, अभी आप में से कौन मुझे बताएगा? चलो, मैं अभी आपको किसी का नाम लेता हूं, ठीक है। वो मुझे बताए। कैवल, बताओ। चलो, B से C पाथ का आंसर बताओ। प्लस आई इंटू प्लस आई माइनस I1 पहले आएगा VB, दीदी। फिर क्या करोगे? बैटरी मतलब माइनस +1 +1, फिर क्या करोगे? प्लस आई माइनस I1। प्लस करेंगे, क्योंकि करंट के हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, करंट क्या है, उससे ऑपोजिट है। करंट उससे ऑपोजिट है, इसलिए प्लस आएगा। और प्रोडक्ट करना है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है। रेजिस्टेंस है 1 और करंट कितना है, I माइनस I1। तो उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा I माइनस I1। चलो, ठीक है, B से C हो गया। अब चलो हर्ष बताओ, C से D क्या होगा? B से D। C से D क्या होगा? C से D। ओके, तो VC। नहीं, C से D। C से D जाना है। करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? बोलो। ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो प्लस रखना है या माइनस रखना है? प्लस रखना है। प्लस रखना है। चलो, प्लस कितना रखना होगा? 2। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो करंट Yes, और sir. रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कितना होगा? बोलो। 4। ए भाई, करंट कितना है? I माइनस I1 है। ओके, रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। 2।
2 into I minus माइनस I1. I2 I1 I1। फिर बैटरी आ गई, बैटरी में क्या करेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं, देखो यस वो क्या करना चाहिए, माइनस से प्लस जा रहा है इज इक्वल टू माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन माइनस से प्लस जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। वेरी गुड। अब डी से बी जाना है, ठीक है। ध्रुवी बताओ, चलो डी से बी जाएंगे तो क्या होगा, सर -2I1। परफेक्ट, -2I1। कहां पे रोकना है, बी पे रुक जाना है, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, वीबी कर देंगे। VB। परफेक्ट। चलो अब क्या करना पड़ेगा, वीबी और वीबी कैंसिल हो गया यहां से। अब क्या होगा, देखो यहां से ये 2I माइनस I1 है और ये 1I माइनस I1 है, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स I माइनस I1 हो जाएगा। फिर ये माइनस 2I1 एक और पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे, और 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, 3I माइनस 3I1 माइनस 2I1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। चलो उसके बाद क्या मिलेगा देखते हैं। Yes. 3I माइनस 5I1 इज इक्वल टू -3 करेंगे, और ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया सबको भाई? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे और I1 की वैल्यू को ढूंढेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन किसका करना पड़ेगा, मुझे I1 ढूंढना है तो I का एलिमिनेशन करना पड़ेगा, और I के एलिमिनेशन करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखते हैं कि एलिमिनेशन कैसे होता है, राइट। तो देखो हियर फ्रॉम 2 and 3 ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, चलो क्या आएगा, 3 2 जा 6I प्लस 3I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 6I माइनस 10I1 इज इक्वल टू -6 आ गया, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या यस करना है, सर। यस सर। चलो अब क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। तो एलिमिनेशन करने के लिए साइन को चेंज कर देंगे, साइन को चेंज करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। चलो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। एलिमिनेशन आता है ना भाई सबको, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 6I एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा 13I1 और ये कितना हो जाएगा, 12। ओके, तो यहां से मुझे मिल जाएगा, हेंस I1 का वैल्यू क्या आ गया, 12/13 एम्पियर आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर अब क्या करना है, ये I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर रख देंगे, एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करना पड़ेगा, VBD जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 2I1 विच इज बेसिकली 2 टाइम्स 12/13, ठीक है। और इसकी वजह से VBD का वैल्यू क्या मिलेगा, 24/13 वोल्ट मिलेगा, एंड दैट्स ऑल। ये इसका आंसर आ गया है। समझे कि नहीं समझे भाई? यस सर। यस सर। यस सर। बस यहाँ पे अगर Yes, आपको sir. लूप Yes, में sir. घूमना आता है ना तो काम बन जाएगा आपका। सिर्फ लूप में घूमना आना चाहिए। સર બોલો। માં કોઈ એક્સટર્નલ કરંટ આવતો હોય તો બહારથી હા, તો આપણે એને જોવાનું જ નહીં, આપણે તો લૂપ થી જ મતલબ છે, બરાબર।
આપણને લૂપથી જ મતલબ રાખવાનો, ગમે ત્યાંથી કરંટ ના આવે, આપણે પહેલા લૂપ સિલેક્ટ कर लेवानू, वी विल सिलेक्ट द लूप फर्स्ट एंड उस लूप में करंट कौन सा है वो देखो सिर्फ, देखो मतलब उस लूप के अंदर जितना करंट है उसको ही फोकस करना है, उसके बाहर कुछ भी हो रहा हो वी डोंट केयर, ओके। तो ये है किरचॉफ का सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ से आपको मैंने एक प्रॉब्लम करके दिखाया, समझ में आ गया ये प्रॉब्लम परफेक्टली? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। चलो अभी एक और चीज करते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। इसको एक और प्रॉब्लम करने के लिए अपने एक थ्योरी पढ़ते हैं, और वो टॉपिक जो है उसको कहते हैं व्हिस्टन ब्रिज, उसको कहते हैं व्हिस्टन ब्रिज। ध्यान से सुनना अभी। व्हिस्टन ब्रिज, ठीक है। अब व्हिस्टन ब्रिज में क्या पढ़ना है एग्जैक्टली? तो ये व्हिस्टन ब्रिज है ना, एक स्पेसिफिक टाइप की सर्किट है। व्हिस्टन ब्रिज जो है एक स्पेसिफिक टाइप की सर्किट है। यहां पे क्वेश्चन, अगर एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा कि एक्सप्लेन व्हिस्टन ब्रिज, सिंपल, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा एग्जाम के अंदर। तो व्हिस्टन ब्रिज एक ऐसी सर्किट है जो यूज होती है अननोन रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए। अगर मुझे किसी अननोन रेजिस्टेंस को ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, व्हिस्टन ब्रिज नाम की सर्किट का यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये सर्किट कैसी होती है सबसे पहले वो समझते हैं। चलिए ये सर्किट सबसे पहले समझते हैं कि कैसी होती है। देखो ये सर्किट का, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं है ना सर्किट नीचे बनाता हूँ, क्योंकि अपने यूटिलाइज करना पड़ेगा उसको लूप लेने के लिए। तो आई एम जस्ट मेकिंग दैट सर्किट एट हियर दिस प्लेस ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, ये सर्किट को हम यहां पे बनाते हैं। चलिए ओके, ये यहां पे आ गया है। देखो अब क्या करना है, देखो यहां पे इस सर्किट के अंदर यहां पे भी एक ऐसा वायर होता है, और यहां पे हम क्या कनेक्ट करते हैं, एक करंट मेजरमेंट की डिवाइस, या तो एमीटर आप जानते हो ना, करंट मेजर करता है। Yes, sir. Yes, sir. कभी नाम सुना है? करंट मेजर करने वाला डिवाइस क्या होता है? एमीटर। वोल्टेज sir. मेजर करने वाला डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, और गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, Presence गैल्वेनोमीटर लगा। हाँ, गैल्वेनोमीटर चेक करता है कि करंट है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ओके, अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये दो पॉइंट है ना, उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करेंगे, हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। इन दो पॉइंट के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ये लगा दी बैटरी हमने यहां पे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस पॉइंट को अपने बोलते हैं ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, ठीक है। आप ये सर्किट आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसे कैसे बना लेते हो, हमको तो रटना पड़ेगा। मतलब ये डेफिनेटली ये सर्किट प्री डिफाइंड सर्किट होती है, समझो। हम यहाँ पे कोई सर्किट बनाते नहीं है, ऑलरेडी जो बनी हुई सर्किट्स है वो सारी सर्किट्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये सर्किट ऑलरेडी बनी हुई है। इस सर्किट के अंदर मान लो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस है,
ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस है R2, ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज R3, और ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज R4। ओके, 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, और इस 4 रेजिस्टेंस में ये R2 जो है ना वो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन, मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है, और मैंने वो रेजिस्टेंस को यहां पे कनेक्ट किया है। क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है इसलिए। ओके, मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है इसलिए। चलो अब क्या करना है उसके बाद? तो उसके बाद ये R1 जो है ना ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, वेस्टर्न ब्रिज की जब सर्किट बनाएंगे तब ये R1 को क्या कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे, उसको वेरी नहीं करेंगे, उसका ये वैल्यू होगा ना वो फिक्स्ड होगा, R2 अननोन होगा। अब ये R4 जो है ना ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। देखो रेजिस्टेंस के अंदर ऐसा अगर मैं एरो करता हूं तो ये जो एरो है ना उस एरो का मतलब होता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेस है। वेरिएबल रेजिस्टेंसेस का मतलब ये कि आप उसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐसे रेजिस्टेंसेस है ये। और नीचे हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो सर्किट है ये सर्किट हो गई व्हिस्टन ब्रिज की सर्किट। तो व्हिस्टन ब्रिज जो होता है वो क्या यूटिलाइजेशन क्या होता है उसका, तो कि व्हिस्टन ब्रिज is the circuit which is utilized in order to find क्या, unknown resistances, in order to find unknown resistance, okay, in the circuit R2 is unknown resistance, okay, R1 is fixed resistance, and R3 and R4 are वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, ये R1 फिक्स्ड है, R2 अननोन है, और R3 और R4 जो है ना वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ओके, हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे जो चीज सीखनी है उसको कहते हैं ब्रिजिंग द सर्किट। ये ब्रिजिंग द सर्किट क्या होता है समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये ब्रिजिंग सर्किट का मतलब ये होता है कि बी पॉइंट और ये डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर देना, सेम कर देना। आप सोचोगे पोटेंशियल हम सेम कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियल तो जो होता है वो होता है। तो हम इसी के वजह से तो क्या करते हैं, ये देखो R4 और R3 ये दो रेजिस्टेंसेस ऐसे रेजिस्टेंसेस है जो वेरिएबल है, समझो। तो हम क्या करेंगे, R3 और R4 को चेंज करेंगे, ठीक है। R3 अगर आप डिक्रीज करोगे तो आपको R4 को इंक्रीज करना पड़ेगा, और R3 अगर आप इंक्रीज करोगे तो R4 को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये दो रेजिस्टेंसेस को आप क्या करोगे, चेंज करोगे, वेरी करोगे। तो हम R3 और R4 को दोनों को चेंज करेंगे, और चेंज करते करते देखते जाएंगे, एक ऐसा मोमेंट आएगा जिस मोमेंट पे ये पॉइंट B जो है, ठीक है, वो पॉइंट B का पोटेंशियल और ये पॉइंट D जो है उस पॉइंट D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पॉइंट B का पोटेंशियल और पॉइंट D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेम हो गया, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये B और D का पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है तो B से D की तरफ या D से B की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो ये गैल्वेनोमीटर जो लगाया है ना वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। आप लैब में देखोगे ना तो गैल्वेनोमीटर का डिवाइस कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा गैल्वेनोमीटर का डिवाइस होता है। यहां पे एक पॉजिटिव कनेक्टर होता है, यहाँ पे एक नेगेटिव कनेक्टर होता है, और इसको आप ये यहां से दो वायर कनेक्ट करके आप कहां पे
जहां से भी करंट चेक करना है उसके अंदर आप जोड़ दोगे। अब यहाँ के इसके बीच में यहाँ पे एक स्केल होता है, इसके बीच में 0 होता है, फिर ऐसे अलग अलग स्केल होते हैं इस तरफ, और सिमिलर स्केल क्या मिलेंगे आपको, इस तरफ मिलेंगे। और यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है, डंडी होती है जो घूमती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर करंट 0 है, मान लो अगर यहां से करंट आया और यहां से करंट निकला, तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरफ होगा। अगर करंट यहां से आता है, फॉर एग्जाम्पल करंट क्या हुआ, यहां से आया और यहां से बाहर निकला, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। लेकिन अगर कोई करंट नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर से पास होने वाला करंट भी क्या होगा, 0 होगा, तो ये डंडी क्या दिखाएगी, 0 पे रहेगी। 0 पे रहेगी मतलब उसको क्या बोलते हैं हम अपने, कि डिफ्लेक्शन 0। समझ में आया? ये राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर वो डंडी जो है, इंडिकेटर जो है, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 पे रहेगा, और हम क्या बोलेंगे कि वहां पे 0 डिफ्लेक्शन होता है। तो ये 0 डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा। जैसे ही बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बी और डी के बीच में जो डिफ्लेक्शन होगा करंट पास ना होने की वजह से, आपको क्या मिलेगा, 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये 0 डिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो ब्रिजिंग कंडीशन समझते हैं। तो ब्रिजिंग कंडीशन मतलब क्या करना, R3 और R4 को इस तरह से एडजस्ट करना कि सो दैट बी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हियर we changes the value of what, R3 and R4 both such a way that potential at B and potential at D becomes क्या, equal. Potential at B and potential at D becomes equal. Therefore, no current will flow through wire BD and hence galvanometer indicates क्या, 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अचीविंग दिस कंडीशन is known as what, ब्रिजिंग। समझ में आया ब्रिजिंग क्या होता है? हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। यस I सर। want answer Yes, sir. one. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया ब्रिजिंग। sir. ब्रिजिंग का मतलब होता है अचीविंग व्हाट, 0 डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर so that potential at B and potential at D will become equal। तो हम ये करेंगे। अब ब्रिजिंग हो गया है। मान लो अभी मैं सर्किट जो दिखा रहा हूं ना, ये ऑलरेडी, ये सर्किट कौन सी सर्किट है, ब्रिज्ड सर्किट है। ये ब्रिज्ड सर्किट है ये, ओके। तो ब्रिज सर्किट है तो उसके अंदर करंट का फ्लो किस तरफ होगा, तो देखते हैं। चलिए, यहां से करंट निकलेगा I, ओके। अब यहां से करंट के 2 हिस्से होंगे। चलो मान लो कि इस तरफ करंट जो जाता है उसको मैं बोलता हूं I1। तो I1 यहां से जाएगा आगे आगे आगे, इस पॉइंट B पे उसके क्या होने चाहिए थे, 2 हिस्से होने चाहिए थे, राइट, 2 टुकड़े होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे वो 2 टुकड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? पोटेंशियल इस पर्टिकुलर BD पाथ पे तो कोई करंट है ही नहीं, हमने ब्रिजिंग कर दिया है, ठीक है। ब्रिजिंग कर दिया मतलब क्या, कि BD में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो मतलब क्या हो गया, वो I1 डायरेक्टली कहां चला जाएगा, B से C की तरफ चला जाएगा।
और इस तरफ मान लो जो I का करंट यहाँ पे I आया, इसका एक पार्ट I1 उस तरफ आगे गया, एक पार्ट यहाँ पे क्या हुआ I2 हुआ फॉर एग्जाम्पल। ये I2 की वैल्यू क्या होगी, I माइनस I1 ही होगी, लेकिन मैं यहाँ पे इजीनेस के लिए क्या लिखता हूँ, I2 लिखता हूँ। I1 इस तरफ गया, I2 इस तरफ गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होना चाहिए था, दो हिस्से होने चाहिए थे करंट के, लेकिन D से B की तरफ तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर ब्रांच पे I2 ऐसे ही जाएगा। ओके, फिर ये I1 और I2 इस C पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और C पे मिल जाएंगे, फिर से क्या बना देंगे, I बना देंगे, और ये I करंट लौट के वापस उस बैटरी के अंदर घुस जाएगा। समझ में आया करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। पक्का? ओके, चलो अभी क्या करेंगे, देखो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा देखते हैं। चलो अब कुछ नहीं करना है, किरचॉफ लॉ लगाना है। कौन से लूप पे लगाओगे भाई, ABDA पे लगाओगे और BCDB पे लगाओगे। दो लूप है आपके पास, दो लूप पे किरचॉफ लॉ लगाओ और उससे कुछ हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। सो नाउ अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप, कौन सा लूप लेते हैं, ABDA, ABDA, किरचॉफ वोल्टेज रूल को ABDA पे लगाते हैं। चलो ABDA पे लगाओगे तो क्या होगा देखते हैं, VA क्या होगा, माइनस I1 R1, फिर B से D में तो कुछ होगा ही नहीं, अब D से A की तरफ जाओ, D से A की तरफ जाओगे तो क्या होगा, प्लस I2 R4 इज इक्वल टू VA। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल भाई अनिकेत Yes, समझा sir. इसको तू। चलो मैच कहते तो खबर ना पड़ी। चलो कौन समझाएगा इसको, कल्प एक्सप्लेन करो, चलो इसको, ये कैसे आया, Yes, sir. इसको एक्सप्लेन करो कि कैसे आया ये। સર એ અહીંયા R3 ને R4 ને એ રીતે ચેન્જ કર્યા છે કે B અને D વચ્ચે કોઈ કરંટ ફ્લો ના થાય કે ગેલોન્ટર કોઈ ડિફ્લેક્શન ના બતાવે એ રીતે। ये इक्वेशन कैसे आया, અચ્છા A થી સ્ટાર્ટ કર્યું એટલે પછી કરંટ ની ડાયરેક્શન માં જઈએ છે એટલે -I1 R1 પછી I2 પછી એટલે કરંટ ની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન માં જઈએ છે એટલે I2 R4 રેઝિસ્ટન્સ बराबर है। तो અને बराबर खबर સ્ટોપ समझ કર્યું गया આપણે अनिकेत? એ हाँ बोल, बोलो बोलो। કોણ હું हाँ तू જ ने, બીજું શું? પછી સ્ટોપ એ કર્યું એટલે પાછું VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો સાંભળો ફરી વાર, તારું એકદમ પરફેક્ટ હો, કલ્પ તે સાચું બોલ્યું છે। હવે सी लिसन हियर, ए से बी जाओगे, ए से बी जा रहे हो तो क्या हो, करंट के साथ, करंट के साथ तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, रूल याद है ना, करंट के साथ माइनस और करंट के ऑपोजिट प्लस। तो ए से बी जाओ तो करंट के साथ जा रहे हो, करंट के साथ जा रहे हो इसलिए माइनस आएगा। माइनस कितना, तो कि वोल्टेज, वोल्टेज कितना होता है, तो कि I1 R1 जितना होता है भाई, तो ये I1 R1, समझे। फिर क्या करोगे, बी से डी जाओगे, तो बी से डी में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो अपने यहाँ पे वो अपना जो रूल है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना तो रेजिस्टेंस है ना तो करंट है। अब डी से ए की तरफ जाओ, डी से ए की तरफ जाओगे तो क्या कर रहे हो आप, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है, प्लस, और प्लस कितना करना पड़ेगा, तो कि I इंटू आर, तो I कितना है I2 और R कितना है R4, तो I2 R4, और रुकना कहाँ पे है, A पे रुकना है, तो इज इक्वल टू VA। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर पढ़िए। Yes, sir. परफेक्ट। तो अभी क्या करते हैं, VA को कैंसिल कर देते हैं, और इसके कैंसिल करने से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R4, है कि नहीं। और इसके ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, I1 अपॉन I2 क्या होगा,
R4 अपॉन R1 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। एकदम समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो अब वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। चलो अब किसकी बारी है? नेक्स्ट कौन बताएगा? नाउ चलो, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल टू लूप। अभी देखो मैं कौन सा लूप ले रहा हूं, बी सी डी बी ले रहा हूं, ठीक है? बी सी डी बी, बी से सी से डी से बी। तो ये लूप मैंने लिया यहां पे, और ये लूप लेते ही अब क्या होगा देखते हैं। चलो मनन बताओ क्या होगा? हाँ बी सी शुरुआत करेंगे वीबी से, वीबी फिर क्या बोलो? बिकॉज मेरा सर माइनस I1 R2 सर। बराबर है, डायरेक्ट मनन ने बोला दिन बता। चलो इतना आंसर अनिकेत ने दे दिया, -I2 I1 R2। बाकी का आंसर मनन देगा, अभी कोई नहीं बोलेगा। -I1 R2 પછી સર આપણે એના પછી C થી D જશું। સો આપણે કરંટની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જાય છે એટલે પોઝિટિવ આવશે સાઇન। બરાબર, વેરી ગુડ, સુપર। પછી પોઝિટિવ I1 R3 I2 R3 है जो, હા સોરી I2 R3 इट इज I2 R3। એના પછી આપણે કરંટને B થી D માં કઈ થશે નહીં કેમ કે કોઈ ચાર્જ કે રેઝિસ્ટન્સ નથી અને આપણે એને B પર સ્ટોપ કરવાનું છે એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ VB લખી લઈશું। परफेक्ट, सुपर, शाबाश, एकदम जोरदार, थैंक यू सर। एकदम जोरदार। चलो अब क्या होगा? VB VB कैंसल, तो I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3, और उसके ऊपर से मुझे I1 अपॉन I2 क्या मिलेगा बोलो? R3 अपॉन R2 मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। चलो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? R4 अपॉन R1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R2, है कि नहीं? यस सर। यस सर। अभी R2 हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है? अननोन रेजिस्टेंस है। तो अपने क्या करते हैं, R2 को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो R3 R1 अपॉन R4 हो जाएगा, R3 R1 अपॉन R4 हो जाएगा। Is that understood? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, तो sir. इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव मोड में मैं लिखता हूं। देखो R2, ये R1 रेजिस्टेंस जो था ना हमारा नॉन रेजिस्टेंस था, इसलिए मैं उसको अलग लिखता हूं। और ये R3 और R4 जो है वो ये रेशियो होता है, क्योंकि दोनों चेंज होता है ना, R3 और R4 दोनों चेंज होते हैं, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा? ब्रैकेट में लिखा। तो ये हो गया R2 का फॉर्मूला। तो मतलब R1 देखो क्या है, फिक्स वैल्यू है, वो हम जानते हैं, और R3 R4 को हम ही बदल रहे हैं ना, हम ही बदल रहे हैं। तो R3 और R4 की दोनों की वैल्यू हमको पता होगी कि कितनी हमने रखी है। तो दोनों की वैल्यू अगर मुझे पता होगी तो R3 नोन है, R4 नोन है और R1 नोन है। तो ये 3 रजिस्टर नोन है, तो क्या मिल जाएगा मुझे? R2 की वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ करना क्या है, देखो ये कैलकुलेशन करने में इतना लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे सर्किट है ना, वैसे सर्किट जोड़ो, R3 R4 को चेंज करो, और R3 R4 को चेंज करके जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है, बस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे R3 क्या है उसको नोट डाउन कर लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे R4 क्या है उसको नोट डाउन कर लो, R1 तो आपने फिक्स रखा ही है तो उसकी वैल्यू नोट डाउन कर लो, और इस फॉर्मूला के अंदर तीनों वैल्यू डाल दो। तो जैसे इस तीनों वैल्यू आप इस फॉर्मूला के अंदर डाल दोगे तो आपको R2 विच इज अननोन रेजिस्टेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस यस Sir. यस सर। सर। ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल चुकी है। अब सरप्राइजिंगली यहाँ पे जरा ध्यान से देखो,
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये थोड़ा कलर बदल देता हूं मैं यहाँ पे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या बोल सकते हैं कि R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4 होगा कि नहीं होगा? R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4 होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. जरा सर्किट के Yes, ऊपर sir. ध्यान दो। यस सर्किट के ऊपर फिर से ध्यान दो। देखो सर्किट में R1 R3 मतलब सामने सामने वाला रेजिस्टेंस है। देखो R1 और R3, और R2 और R4 भी क्या है? एक दूसरे के आमने सामने वाले रजिस्टर है। मतलब कॉमन सेंस अपनी ये कहती है कि ऐसी सर्किट बनी हो और उसमें जो एक दूसरे के सामने जो रजिस्टर है ना, उसका प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा सेम होगा, अगर ब्रिजिंग कंडीशन अचीव हो चुकी है तो। समझे कि नहीं समझे? ब्रिजिंग कंडीशन अगर है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। क्रॉस में रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन R1 R2 इज इक्वल टू R2 R4 व्हेन circuit is bridged।